صحافت ہے اور صحافی برادری کو ان کے جائز جو حقوق ہے ان کی فراہمی یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا آج جو پریزنٹیشن ہوئی اس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت پر صحافیوں کو اس اسکیم کے اندر شامل کیا گیا اور ایک مخصوص کوٹا ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان اپارٹمنٹس کے اندر بیلٹنگ کے ذریعے صحافی برادری جو ہے وہ بھی شمولیت اختیار کر سکتی ہے۔ یہ 650 اسکوائر فٹ پر مشتمل یہ اپارٹمنٹ ہوگا جس کی جو ہے وہ قیمت 27,06,000 رکھی گئی ہے اور مارکیٹ میں یہ سب سے سستا اپارٹمنٹ بننے جا رہا ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو پہلی قسط ہے اس وقت دینی شروع کرے گا الاٹی جس وقت وہ اس اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی جو کرائے پہ لوگ ہیں جو جہاں اپنا گھر نہیں ہے ان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سہولت نہیں ہو سکتی کہ وہ 15 سے 16,000 کی قسط دے کے بینکوں سے یہ ریلیف لے، اور حکومت پنجاب جو ہے ان کو پنجاب بینک کے ذریعے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ نیشنل بینک، UBL، الفلاح اور میزان بینکوں کے ذریعے ان کو وہ فیسیلیٹیشن دے رہی ہے جس کے تحت 50,000 سے کم آمدنی والا جو ہمارا سرکاری ملازم ہے اور آپ لوگ جو ہیں اس کوٹے کے مطابق جو ہے بیلٹنگ پیپر کے ذریعے، کیونکہ یہ ایک صاف شفاف عمل کے ذریعے یہ الاٹمنٹ ہوگی اور اوپن بیلٹنگ سے ہوگی، اور اس کا فارم اور لیٹر آف کمفرٹ جو ہے یہ ساری بینک سے وہ متعلقہ جو ہمارا اپلیکینٹ ہوگا وہ طے کرے گا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک اپارٹمنٹس کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ آف آرٹ ماڈرن سٹی ہم آباد کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہاسپٹل، پارکس ہیں، اسکول، کالجز اور ادر لائیولی ہوڈ کے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے، اور یہ 20 سال کی آسان قسطوں پہ ہم یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور فارم بھی بینک سے وصول ہوں گے اور بینک ہی ان فارمز کو جمع کرنے کا اختیار رکھے گا۔ اس کے علاوہ لائرز کے لیے بھی، وکلاء کے لیے بھی اس میں خصوصی کوٹے کی آج کیبنٹ نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اور وہ بھی اس منصوبے کے اندر بیلٹنگ پروسیس کے ذریعے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ایکٹ ہے 2014 جس کے مینجمنٹ اینڈ ٹرانسفر آف پراپرٹیز کے سیکشن 19 کے تحت LDA سٹی بنانے کا یہ جو نیا پاکستان اپارٹمنٹ اور فلیٹوں میں تبدیل کرنے کا ایک قانونی طریقہ کار ہے اس کی باضابطہ کیبنٹ نے منظوری دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کے اہم ایجنڈا آئٹم میں ہمارے 11,000 چھوٹے ملازمین جو ڈرائیور ہیں، جو نائب قاصد ہیں، جو کہ ڈپارٹمنٹ میں مختلف چھوٹی پوسٹوں پہ کام کرتے ہیں، درجہ چہارم کے ملازمین جن کو آپ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ان ڈرائیورز کو الیکٹریشین، میکینک، ڈسپیچ رائٹرز وغیرہ کی اگلے گریڈ میں ترقی کی منظوری دی ہے، اور یہ ایک ایسا حوصلہ افزا عمل ہے کہ جس سے پنجاب کے اندر کام کرنے والے 11,000 چھوٹے ملازمین کو فائدہ پہنچے گا۔ ملتان میں پرانی غلہ منڈی گودام کی جگہ 200 بستروں پہ مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہاسپٹل کی قیام کی باقاعدہ کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ 2 مزید سیمنٹ پلانٹ جو ہیں وہ پنجاب لائے جا رہے ہیں، اس کی کیبنٹ نے اپروول دی ہے جس میں ایک ڈی جی خان میں اور ایک میاں والی میں یہ پلانٹ لگے گا۔ اس سے نہ صرف
अरबों की सरमायाकारी होगी, बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। महकमा बहबूद आबादी में काम करने वाले डॉक्टर्स को भी खसूसी अलाउंस देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है, और जिसके तहत हेल्थ प्रोफेशनल एंड स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस जो है वो अब उन डॉक्टर्स को भी दिया जाएगा जो महकमा बहबूद आबादी में काम कर रहे हैं। जो पंजाब में कच्ची आबादी है उनको रेगुलराइज करने की जो स्कीम है उस पर नजरसानी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जो कच्चियों के तमाम अमूर का जायजा लेगी और हतमी सिफारिशात जो है वो कैबिनेट के सामने लेके आएगी। पंजाब कैबिनेट ने सूबाई ड्रग टीमों के क़याम की मंजूरी दी है। हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है वो इस वक्त चूँकि इस हुकूमत का क्वालिटी हेल्थ को इंश्योर करना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का अज़म है, और उसी को दोहराते हुए आज हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है उनकी रूल्स के मसवदे की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है। पंजाब म्यूजियम एक्ट 2020 के मसवदे को अप्रूव किया गया है। पाकिस्तान ट्रैवल एजेंसी एक्ट 1976 तरमीम की मंजूरी दी गई है। सरकारी यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ओहदों के लिए कायदो ज़वाबित की मंजूरी दी गई है। पंजाब पुलिस के अंदर मिनिस्टेरियल पोस्ट रूल 2017 में अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी गई है। इस तरमीम से स्टेनोग्राफर्स अहलियत का जो मेयार था उसमें तब्दीली की गई है। प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म्स की रजिस्ट्रेशन और तजदीद की फीस में इजाफे का फैसला किया गया है। कैट रजिस्ट्रेशन और तजदीद की फीस में इजाफे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। फॉरेस्ट एक्ट में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है। पंजाब अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी 2020 की भी कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब को इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों पर फास्ट ट्रैक से अमल दरामद के काम को आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी है। कैबिनेट ने MIT एक्ट को म्यू हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में नाफज करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। दी पंजाब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स तरमीमी एक्ट 2020 की भी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। पंजाब कैबिनेट को महकमा ज़राअत की कारकर्दगी के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है, और एक कंप्रीहेंसिव वेल प्लान्ड एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है उसके हवाले से तरजीहात तय करने के लिए एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई है, जो एग्रीकल्चर को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आंग बनाने के लिए एक इफेक्टिव हिकमत अमली जो है वो मरतब करके कैबिनेट के सामने पेश करेगी। पंजाब काबीना ने सरकारी अराजी मुल्तान जिमहाना को लीज पर देने का जायजा लेने के हवाले से कमेटी तश्कील दी है। पंजाब कैबिनेट के 40वें इजलास की कार्रवाई की तौसीक की गई है। स्टैंडिंग कमेटीज बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 40वें, 49वें और 50वें इजलासों के फैसलों की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी अमूर के 44वें, 45वें, 46वें और 47वें इजलासों के फैसले की भी तौसीक की गई है। चूँकि ये आज काफ़ी लंबा क्या बस था, इससे पहले कि आप सवालात की तरफ आए, मैं उसमें दो अहम पॉइंट जो है वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो लो कास्ट हाउसिंग का विजन है, कैबिनेट ने उस सोच को आज अमली तबीर दी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो मेहनत है वो रंग लाई, और अब हमारे सूबे के अंदर बसने वाले जो हैं वो पिछे हुए तबकात जो हैं उनको छत की फराहमी यकीनी बना के जो रियासत मदीना की तरफ कदम बढ़ाने का वज़ीर आज़म का नारा था, आज हमने उसकी तबीर की तरफ बाकायदा तौर पे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दूसरा, कोई भी इदारा, कोई भी हुकूमत जो है वो अपने मुलाजमीन को सपोर्ट किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये जो एक हमारे यहाँ प्रमोशन स्ट्रक्चर और
ग्रेड के अंदर, कैडर के अंदर चैलेंजेस थे, उनको पैरिटी में और रिलीफ को अक्रॉस द इंस्टीट्यूशंस स्प्रेड करने के लिए ये जो 1 ग्रेड अप किया गया इन मुलाजमीन का, वो उनके ग्रेड अप नहीं होगा, वो उनका मोराल भी अप करेगा। और ये सरकारी अदारों में काम करने वाले 11,000 मुलाजमीन जो है वो अब ज़्यादा मौसर अंदाज से अपने फ़राइज़ की अदायगी यकीनी बना सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सवाल करना चाहें तो जल्दी, ताकि आगे। मियां शाहिद साहब। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत को ये खुशी नहीं दूंगी। एक वजीर ने कहा है कि इनको बाहर भेज दें तो सारे मामला हल हो जाएंगे। तो ये क्या है? अगर घर आकर भी पेशकश करें तो बाहर नहीं जाऊंगी, क्या कहती हैं इस पे आप? देखिए, ये एक जो मार्च करीब आ रहा है और पीडीएम का जो बयानिया था उसकी सियासी मौत भी उन्हें वाजिया और दिखाई दे रही है। तो ये रवायती जो शाही खानदान का वतीरा रहा कि बाहर जाने के लिए कोई ना कोई उन्होंने जवाज और बहाना तलाश किया और हमेशा टेम्पर्ड रिपोर्टों का सहारा लेके मुल्क से फरार हासिल किया। ये भी उसी सोच की कोई अक्कासी लग रही है कि जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के लिए जीना है, हमने पाकिस्तान के अवाम के साथ मरना है, अब जब उन्हें सेनेट में भी अपनी शिकस्त के आसार नुमाया नजर आने शुरू हो गए हैं और पीडीएम का बयानिया और पीडीएम के साथ जुड़ी हर हिकमत अमली नाकाम हो गई है, तो अब वो बीमारी का सहारा लेके, सर्जरी का सहारा लेके बैरून मुल्क जाने के लिए बहाने और जवाज तलाश कर रही हैं। सर्जरी वजीर आज़म इमरान खान ने जो करप्ट और करप्शन के साथ जुड़ी प्रैक्टिसेस थी, उनको उन्होंने जब से सर्जरी करने का फैसला किया है, हमारी अपोजिशन के अफराद के अंदर ये बीमारियां बढ़ने लगी हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान ने सर्जरी करनी है, इस सर्जरी का अमल जारी रखना है। आप कैंसर से निजात पाने के लिए, ये करप्शन का कैंसर जो है, इससे निजात पाने के लिए जो सर्जन है वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। दुनिया में करप्शन की सर्जरी का कोई सर्टिफाइड मुआलिज है ही नहीं सिवाय इमरान खान के। तो लिहाजा अगर तो ये करप्शन की सर्जरी है तो वो पाकिस्तान में इमरान खान के हाथों होगी, और अगर इसके अलावा कोई सर्जरी है तो उसको एस्टैब्लिश करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उसके लिए अपने ज़िले सुबहानी की तरह कोई जैली रिपोर्टें, फैब्रिकेटेड रिपोर्टें, मैनेज रिपोर्टें मीडिया की स्क्रीन पे नहीं लाएंगी और कौम के बाकी 22 करोड़ अवाम की तरह पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए वो अपनी सर्जरी पाकिस्तान में करवाएंगी। पहले तो वो सर्जरी पता चले कि वो दिमाग की सर्जरी है, वो किस सजा की सर्जरी है या आंखों की सर्जरी है, जहां उनको ये दिखाया गया कि आप जिधर जाएंगी लोग ही लोग होंगे और जहां जलसा करेंगी अवाम आपके आगे हाथ फैलाए तलियों पे उठाने के लिए बेकरार नजर आएंगे। तो यकीनन उन्होंने दर दर फिर लिया, तब उन्हें समझ आ गई है कि अवाम कहीं दिखाई नहीं दिए, तो शायद आंखों की सर्जरी कराना चाहती हैं, दिमाग की कराना चाहती हैं या किसी और अज़ा की, इसका फैसला वो उन्होंने करना है। हुकूमत जो है वो करप्शन की सर्जरी करने के लिए पुरज़म है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई पंजाब में जितनी सीटें बनती हैं सेनेट के लिए उतने ही उम्मीदवार खड़े करेगी, क्या मौका देगी अरकान पंजाब असेंबली को, अगर कोई अपनी मर्जी से पीटीआई को उनके चाहने वाले अगर वोट देना चाहें
तो क्या पीटीआई अपनी तादाद से ज्यादा खड़ा करेगी? और दूसरे नंबर पे जिस सर्जन की आप बात कर रहे हैं इमरान खान की, जिस तरह उन्होंने पिछले इलेक्शन में सर्जरी की केपी के असेंबली से वोट बेचने वालों की, तो अब दोबारा से 3 आजाद उम्मीदवार भी केपी पे खड़े हो चुके हैं। अगर इस किस्म के पीटीआई के वोटों की खरीदो फरोख्त, जिस तरह इमरान खान ने खुद कहा साहिवाल में के वोटों के लिए खरीदारी का काम शुरू होने वाला है, अगर ऐसा कोई काम होता है तो इमरान खान एक दफा फिर अपना वोट स्टेप लेने के लिए इस पोजीशन में है? पहला जो आपका पार्ट है सवाल का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है, पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला करना है कि हमने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अनाउंस किए गए हैं वो एज पर आवर जो अवेलेबल हमें सीट्स हैं उनको मद्देनजर रख के किया गया है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नून लीग के अंदर जो इज़्तिराब है, अफरा तफरी है, और जो बागी अपनी जमात से बगावत करके पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट देना चाहते हैं, तो वजीर आज़म ने सबसे पहले ऑलिव ब्रांच जो पेश की थी अपोजिशन को कि ओपन बैलेटिंग पे आए ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। लेकिन अगर अपोजिशन ने अपनी जग हसाई का ठेका उठाया हुआ है तो फिर वजीर आज़म उसमें क्या कर सकते हैं। जो केपीके की बात है, तो देखिए वजीर आज़म ऐसा सर्जन है कि वो क्वालिफाइड भी है, स्किल्ड भी है, कम्पिटेंट भी है और ऑथराइज भी है। उन्हें इससे पहले भी 20 MPAs को कोई और लीडर ना इतनी जुर्रत कर सकता है और ना ये सोच सकता है कि वो अपने ही MPAs को अपनी जमात से निकाले। जहां किसी के हवाले से उंगली उठेगी उनको तमाम मेंबरान को बारीक बीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि पार्टी के डिसिप्लिन के साथ चलते हुए जो कैंडिडेट्स पार्टी नॉमिनेट करे उन्हें पार्टी का हक है, वो कर्जा है पार्टी का, उन मेंबरान पे वो अपना कर्जा पार्टी को वापस करें और वोट के जरिए वापस करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वहां पे कोई ऐसा अमल नहीं दोहराया जाएगा जिससे फिर मैसिव सर्जरी की जरूरत पड़े। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सेनेट इलेक्शन में जो है वो एक बड़ा मार्का इस्लामाबाद में होने जा रहा है जिसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को पीडीएम ने मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत जो है वो थोड़ा डावाडोल नजर आ रही है। कभी कहते हैं कि जी वो वीडियोज आ जाती हैं, कभी वो कोर्ट में चले जाते हैं, ओपन बैटिंग। कोई खतरा महसूस कर रहे हैं आप यूसुफ रजा गिलानी वाली सीट पे के डॉक्टर साहब जो है वो लूज कर देंगे और उसके लिए क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं अगर वो कोई फ्लोर क्रॉसिंग या इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं? देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन है और ये वो नॉमिनेशन है जिसमें एक कैंडिडेट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला और नाअहल करके निकाला और उसको निकलवाने के लिए जो जमात का लीडर काला कोट पहन के खुद वहां गया, आज वो 2 और तजनिंदा और तायद कुनिंदा सर्टिफाइड नैब को मतलूब नैबज़दा प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये इमरान खान के उस दावे की तस्दीक है कि ये करप्शन को बचाने का जो गठजोड़ है ये उसी की अमली तस्वीर है कि जिसको आपने करप्शन नाअहली सुप्रीम कोर्ट में पेश होके सर्टिफाई किया, आज उसे अपने सियासी मफाद के लिए एक दूसरे को धोखा देते हुए उसे कैंडिडेट नामजद किया है। तो उनकी मतलूबा तादाद वहां ना होने के बावजूद नामजद होना नोटों और बोरियों को हवा लगानी है, क्योंकि जो पैसा ब्रीफ केसों में बोरियों में उल्ली ज़दा हो गया है वो अब मार्केट में आने लगा है और ये उस सोच को भी रिफ्लेक्ट करता है कि ये गठजोड़ जो है अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कौम जो है वो तमाम इनके हथकंडे भी देख रही है और कौम इनकी ये कारस्तानियां जो है उन पे भी
बारीक बीनी से फोकस किए हुए है कि PMLN की क़यादत अपने कौल और फेल में किस तरह तजाद रखती है और कैसे वक्त के साथ, हालात के साथ, सूरत हाल के साथ इनका मिजाज बदलता है, इनके फैसले बदलते हैं, इनकी तरजीहात बदलती हैं। यूसुफ रजा गिलानी की नॉमिनेशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उमर जी, देखिए टेस्ट केस यकीनन उन्होंने एक अपने आप को तसल्लियां देने के लिए रास्ता चुना है और वो रास्ता चुना है नोट की चमक से ज़मीर खरीद के, मंडी लगा के वो अपने उस सेनेट के बंद दरवाजे पे खड़े होके अंदर जाने की कोई ना कोई कोशिश करना चाह रहे हैं, जिसमें उन्हें नाकामी होगी और वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की स्क्रीन को ऑक्युपाई करने का एक हथकंडा है जो बेनकाब हो गया। और वोट जो है वो सेनेटर्स ने डालना है, MNAs ने डालना है, वहाँ की क़यादत जो पार्लियामेंट में बैठी है उसने डालना है। तो वहाँ इस्लामाबाद के हवाले से जो नॉमिनेशन हुई है वो उसी गठजोड़ की निशानदेही करती है जिसके पीछे ब्रीफकेस और चमक खड़ी है, और चमक और ब्रीफकेस मिलके भी इमरान खान के हौसले और अज़म को शिकस्त नहीं दे सकते। इंशाल्लाह वहां पे PTI का ही कैंडिडेट जीतेगा। ये बताइएगा कि शेख रशीद ने बयान दिया है जो बड़ा वायरल भी हो रहा है, उन्होंने कहा है कि शहर जो थे वो पड़े हुए थे और सरकारी मुलाजमीन पे टेस्ट किया गया उसका, तो आप भी समझती कि इंटीरियर मिनिस्टर को ऐसा बयान जो है नहीं देना चाहिए था? मरियम साहिबा ने कहा है कि सेनेट के इंतखाबात के पहले पहली कदम में समाप्ति आ सकती है। और एक और सवाल मेरा कि वैक्सीन आपने कोरोना की मंगाई है, ये मुंह खुर की बीमारी की भी मंगाई आपने वैक्सीन, क्या जरूरत पेश आ गई? अली जो फरमाया आपने, पहली बात तो ये है कि जो शेख साहब हैं वो माशाल्लाह आपकी मीडिया की डार्लिंग है, तो वो डार्लिंग जो कहें वो तो कोई किसी को हक नहीं है कि उस पर कोई उनकी उस नैरेटिव को चैलेंज करे। लेकिन मैंने चूंकि उनका बयान तफसील से सुना नहीं, मैं देखूंगी कि उनका मकसद क्या था। वो हमेशा उनकी बात के पीछे कोई ना कोई मंतक होती है, तो उस मंतक को जांचने के लिए मुझे उसको बयान को सुनना होगा। दूसरी बात जो आपने कही है कि मुंह घर की, देखिए आपका मीट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता दुनिया में जब तक ये हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। तो वैक्सीन आप करेंगे अपने जानवरों को तो उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में कंपैटिबल बनाएंगे, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ेगी, ऑर्डर्स आपके पास हैं, लेकिन इस बीमारी की वजह से स्टिग्मास और क्वेश्चन मार्क हैं। तो हम चाहते हैं कि पंजाब को इस बीमारी से हम फ्री करें और हमारा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनिशिएटिव है जिससे हम करोड़ों रुपए का ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं और ये बीमारी उसके आड़े आती है, हम इस बीमारी का सफाया करें ताकि पाकिस्तान में डॉलर आ सके। लास्ट है मौसम डॉक्टर साहब ये फरमा दीजिएगा, आपने कहा कि चोरी करने के लिए जो एक दूसरे को बुरा कहते थे आज इकट्ठे हो गए हैं, तो इमरान खान साहब जब आपको पंजाब का डाकू कहते थे और शेख रशीद साहब को कहते थे कि पड़ासी भी नहीं लगूंगा, इमरान खान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब काला कोट पहन के उस प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि अपोजिशन को नकारती हैं, कल आपने सियाहत के फरोग की बात की तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वसीम अकरम दस कल चोलिस्तान में थे, जीप चलाते हुए दिखाई दिए, तो उस पर डॉक्टर आमन लियाकत जो आपकी जमात के हैं उन्होंने एक रिएक्शन किया है और नया खिताब दिया है कि सहरा प्लस। तो डॉक्टर आमन लियाकत को क्या कहनी, ये तंज़िया उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने नया एहसास दिया? देखिए, चोलिस्तान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मोहब्बत
और उन पिसे हुए तबकात के साथ जाके उस गैर आबाद इलाके को आबाद करना और इंटरनेशनल सयाहों को वहाँ मदऊ करना और कामयाब रैली के ज़रिए जो पंजाब का हुस्न है उसको उजागर करना और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस रैली से जो पैदा होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, पाकिस्तान का एक रोशन दरख्शां चेहरा दुनिया के सामने पेश होता है। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क के तौर पे उभर के दुनिया के सामने आता है। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने टूरिज्म को जो सपोर्ट देने के लिए खुद जाके वहाँ उस रैली में पार्टिसिपेशन की है। ये एक अवामी लीडर ही कर सकता है, अवामी वज़ीर आला ही कर सकता है। ये सूडो किस्म के नाम नहाद ड्राइंग रूमों में बैठे शोबाज और रंगबाज जो थे, उनका क्या लेना देना कि वो वहां जाए जहां उनकी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जुड़ी बाकी वीआईपी सहूलतें दस्तयाब ना हो। तो लिहाजा अमर लियाकत साहब का वो मेरी जमात में है, मैं सिर्फ उनसे यही कहूंगी कि जमात के डिसिप्लिन को फॉलो करें और आप खुद ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। इसके हवाले से क्वेश्चन है कि जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो कितने फ्लैट जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे? हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी बहुत से लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। 35,000 फ्लैट्स बनाने का ये मंसूबा है। 4,000 से आगाज किया जा रहा है और हमारा टारगेट है कि ये 35,000 इसी टेन्योर में बने और इंशाल्लाह बनेंगे।